Should we start now? Okay, Guru. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tera Manachari Yamuna Tera Manachari Jaya Radha Madhava Kunja Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tera Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare
Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva हरे नाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रबंध महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। Hare Krishna. My senses on the feet, each and every one of you, those who are present here and those who are yet to join us. Today we shall be taking text 28 of chapter 18 of first canto Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistike Alabdyatirna Bhumyadhir Samprayardha Shunirtaha Avagnatam Sivatmanam Manyamana Shukopaha Alabdhatirna Bhumyadhi Sampradhyar Shunirtaha Avagyatami Vatmanam Manyamana Shukopaha Alabdhatirna Bhumyadhi Samprayadhyar Shunirtaha Avagyatabivatmanam Manyamanam Shukopaha. Word meaning? Alabdha न प्राप्त कर सकने से फिरना, दर्भासन, भूमि स्थान आदि इत्यादि। असंप्राप्त ठीक से स्वागत न होकर, अर्ध्य जलदान, श्री नृत्य मधुर वचन, अवज्ञातम इस प्रकार उपेक्षित, इव सदृश आत्मानाम स्वयं को, मन्यमाना इस प्रकार सोचते हुए, चुकोपा क्रुद्ध हुए, इस तरह। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। आसन बैठने का स्थान, जल तथा मधुर वचनों के द्वारा किसी प्रकार से स्वागत न किए जाने पर राजा ने अपने आप को उपेक्षित समझा और इस तरह सोचते हुए वे क्रुद्ध हो गए। सो इट्स अ बिग परपोर्ट। आई विल रीड द फर्स्ट पैराग्राफ, देन सेकंड बिग पैराग्राफ यू पीपल कैन शेयर। वैदिक नियमों की संहिता से स्वागत करने का नियम यह है कि यदि घर पर शत्रु भी आए तो उसका सभी प्रकार से सम्मान किया जाना चाहिए। उसे यह सोचने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए कि वह अपने शत्रु के घर आया है। जब भगवान कृष्ण अर्जुन तथा भीमसेन के साथ मगध के राजा जरासंध के यहाँ पहुँचे तो उसने सम्माननीय शत्रुओं का राजकीय स्वागत किया। अतिथि शत्रु भीम को जरासंध से लड़ना था, फिर भी उसका शानदार सत्कार किया गया। रात्रि में वे मित्रों तथा अतिथियों के रूप में परस्पर बातें करते और दिन में जान की बाजी लगाकर मल्लयुद्ध करते। यह था सत्कार का नियम। सत्कार नियमों में यह आदेश है कि जिस निर्धन व्यक्ति के पास अतिथि को देने के लिए कुछ भी न हो, उसे चाहिए कि बैठने के लिए चटाई दे, पीने के लिए एक गिलास जल दे तथा कुछ मधुर वचन कहे। एवं अतएव अतिथि के सत्कार में चाहे वह मित्र हो या शत्रु कोई खर्च नहीं लगता। यह तो शिष्टाचार की बात है। सो कैन समबडी टेक द नेक्स्ट पैराग्राफ। হরে কৃষ্ণা। মহারাজ পরীক্ষিত যখন সমীক ঋষির দ্বারস্থ হয়েছিলেন তখন তিনি সেই ঋষির কাছ থেকে কোনো রাজকীয় অভ্যর্থনা প্রত্যাশা করেননি।
কেননা তিনি জানতেন যে মহাত্মা এবং ঋষিরা জাগতিক বিচারে ধনী নন, কিন্তু তিনি আশা করেননি যে তিনি একটি তৃণাসন, একপাত্র জল এবং কিছু মধুর বাক্য থেকে বঞ্চিত হবেন। তিনি কোনো সাধারণ অতিথি ছিলেন না এবং তিনি ঋষির শত্রুও ছিলেন না, এবং তাই ঋষির এই অপ্রত্যাশিত আচরণে রাজা অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন। জীবন বিটলা প্রভু। Would you English? Any language. To become angry in such a grave situation was not unnatural for the king, but because of king himself was not less than a great saint. His becoming angry and taking action were astonishing. So it must be accepted that it was ordained by the supreme will of the Lord. The king was a great duty of the Lord, and the saint was also in good as king. But by the will of the Lord, the circumstances were so created that they become ways to the king's becoming unattached to the family connection and governmental activities, and thus becoming a completely surrendered soul unto the lotus feet of the Lord Krishna. Next, Roji. मृदुला माता जी। प्रभु जी from where प्रभु? Last two paragraphs. Last two small paragraphs means The 6 lines. merciful Lord. The merciful Lord. When Maharaja Parikshit entered प्रभु? Okay. The merciful Lord. The merciful Lord sometimes. Text number 28. Okay, Prabhu, I will read Prabhu. When Maharaja Parikshit entered the door of Samitra Rishi, he did not expect a royal reception by the Rishi because he knew that saints and rishis are not materially rich men. But he never expected that a seat of straw, a glass of water, and some sweet comforts would be denied to him. He was not an ordinary guest, nor was he an enemy of the Rishi. And therefore, the whole reception by the Rishi astonished the king. As a matter of fact, the king was right to get angry with the Rishi when he needed a glass of water very badly. To become angry in such a grave situation was not unnatural for the king, but because the king himself was not less than a great saint, his becoming angry and taking action were astonishing. So it must be accepted that it was so ordained by the supreme will of the Lord. The king was a great devotee of the Lord, and the saint was also as good as the king. But by the will of the Lord, the circumstances were so created that they became ways to kings becoming unattached to family connection and governmental activities, and thus becoming a completely surrendered soul unto the lotus feet of the Lord Krishna. Shall I continue, Prabhu? You can finish. Yeah. The merciful Lord sometimes creates such awkward position for his pure devotees in order to drag them towards himself from the mire of material existence. But outwardly the situation appeared to be frustrating to the devotees. The devotees of the Lord are always under the protection of the Lord, and in any condition, frustration or success, the Lord is the supreme guide for the devotees. The pure devotees therefore accept all conditions of frustration as blessing from the Lord. Hare Krishna Prabhu. उमा ज्ञान तिमिरांध से ज्ञान अंजन सलाकया चक्षुस्मृतमेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु शतापतिकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरदत्तं सागरा रघुनाथान् विदन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णपादान् सागरना ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कथन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठावतारे श्रीमद्भक्तिवेदान्त समन्वित नामिने नमो आचार्यपादाय नित्याय कृपा वरदायिने गौरकथादामदाय नगर ग्राम दाने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठावतारे श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने
नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पासे तारणे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। जय श्री प्रभुपाद। सो प्रभुपाद के अनुकंपा से, वैष्णवों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सौजन्य से श्रीमद्भागवतम की नित्य सेवा चल रही है। तो अलब्ध तृणभूम्यादिभिर संप्राप्त्यर्षु निरत अवज्ञाताभिवात्मानं मन्यमानं शुचोकोपः। तो हम मन स्थिति देख रहे हैं आप परीक्षित महाराज की, कि उनको लगा कि मेरा अनादर हो रहा है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, बहुत शानदार प्रपोट आपने सुन लिया, पढ़ लिया श्री प्रभुपाद जी का। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें कि आप बड़े बड़े होटल में जाएं तो वहाँ वेलकम ड्रिंक मिलती है। वेलकम ड्रिंक, ये शिष्टाचार है। पानी का गिलास मत, वेलकम ड्रिंक मिलती है, शिष्टाचार है। और बड़े बड़े रिसेप्शन पे लड़कियां खड़ी रहती हैं, लोग खड़े रहते हैं, हाथ जोड़ के आपका अभिवादन करते हैं, सर वेलकम सर, प्लीज कम इन, थैंक यू सर, सिट देयर। तो वो लोग कहते हैं आपको कहाँ बैठना है, क्या करना है। तो ये शिष्टाचार आज भी है और ये शिष्टाचार हमेशा रहेगा। ये देन है हमारी संस्कृति की। पता नहीं आपको मालूम होना हो, हमारे अर्थशास्त्र जो है वो बृहस्पति ने दिया। जो काम शास्त्र है वो शिवजी और नंदी ने दिया। कौन सा प्रभु? सॉरी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बाय बृहस्पति, बृहस्पति। काम शास्त्र बाय लॉर्ड शिवा एंड नंदी। कौन सा? काम शास्त्र, काम काम शास्त्र बाय नंदी और शिव एंड शिवा, एंड धर्म शास्त्र बाय मनु। तो अर्थ में क्या करना है, काम वासना कैसे तृप्त करनी है और धर्म कैसे निभाना है। तो धर्म की बात है कि सबका स्वागत करना है। आज के प्रत्यक्ष मैंने आपको बताया कि वेलकम ड्रिंक है, बैठने के लिए स्थान है, सब सेवा करते हैं, लोग हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, ये शिष्टाचार है। ये शिष्टाचार तब भी था करोड़ों साल पहले, और आज भी इसको दूसरे ढंग से निभाया जा रहा है। लेकिन क्या होता है, मन स्थिति जैसे हमारे परीक्षित महाराज तो योग माया में हुए, बसीभूत हो गए। लेकिन हम जब किसी के यहाँ जाते हैं तो हमें अपेक्षा होती है कि मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे को ऐसा वेलकम किया जाएगा, ये होगा ये होगा। और अगर उसके विपरीत हो तो अगर आप कुछ बोल भी ना सके तो आप जो हैं उठ के चले जाएंगे। कभी कभी छोटी छोटी चीजें ध्यान देने वाली होती हैं। एक दंपति ने अपने दोस्तों को खाने पे बुलाया, तो जो दंपति मेहमान बन के आए उसने फटा हुआ जुराब पहना हुआ था। उसने बोले जुराब तो जूते के अंदर रहेंगे ना, क्या पड़ने वाला। जब उसके घर पहुंचा तो जो मेजमान थे उन्होंने कहा कि कृपया जूते निकाले। उसने कहा मैं जूते नहीं निकालूंगा। कि भाई जूते नहीं निकालूंगा। अरे भाई अंदर जा रहे जूते मंदिर, बोले नहीं जूते नहीं निकालूंगा। मुझे डर था कि मेरा फटा हुआ जुराब देख लेगा। अब अमानी का तो सूट पहन, अरमानी का तो सूट पहन रखा है और जुराब हम 10 रियाल वाले फटा हुआ। तो वहां से वापस आ गया कि नहीं, जो हमको ऐसा फोर्स करता है हमें ऐसी मेजबानी नहीं चाहिए। अब किसी के दुख को कौन समझे, हम सबकी अपेक्षा होती है। जैसे किसी ने बोला आज हमारे घर में सत्संग है, हमारी अपेक्षा होती है कि देखो दाल होगा, चावल होगा, पापड़ होगा, 2 दिन सब्जी होगी, रायता होगा, ये होगा, अपेक्षित होता है। अगर ये ना हो ना, बोले अरे यार ऐसा ही था, कोई ज़्यादा प्रसाद अच्छा नहीं था। अपेक्षा, हम अपेक्षा में मारे गए हैं। अमानी न मान देना। और ये दुर्घटना हर व्यक्ति विशेष को 2-4 होनी ही पड़ती है। हम आशा करते हैं कि हमारा उचित व्यवहार हो, उचित सम्मान हो, लेकिन दैन्य दया, मान ब्रजन
अगर कोई सहन सके उसके बहुत गुण माने जाते हैं। जो दैन्य हो, ह्यूमैनिटी जिसमें हो, जिसमें दया हो, है, और जिसमें अपमान सहने की शक्ति हो। और अपमान किसका होता है? अपमान शरीर का होता है, आत्मा का अपमान हो ही नहीं सकता है। आत्मा तो शरीर से परे है, तो आत्मा का तो अपमान होता नहीं है। लेकिन ये चीजें हमारे मन में घट जाती हैं और हमें बुरा लगता है। तो ये आप देख लीजिए, जब आप कहीं जाएं, किसी चीज की अपेक्षा ना रखें कि आपको बैठने के लिए अच्छी चेयर ही मिलेगी या आपको ये होगा वो होगा। बिल्कुल, आप क्यों जा रहे हैं? हम जा रहे हैं भगवत मिलन को जा रहे हैं, संत मिलन को जाइए। त्यज माया अपमान, ज्यों ज्यों कदम आगे बढ़े त्यों त्यों कोटि अग्नि समान। जब किसी की हम जाएं तो यात्रा पे जाएं, और जब कोई यात्रा पे होता है तो कोई सुख का अनुभव नहीं होता, अनुभूति नहीं होती कि मुझे ये मिलेगा। हम यात्रा है, या यानी हु कैन टॉलरेट, त्रा मीन्स द ट्रबल्स, यात्रा, ट्रबल। तो जब हम किसी के घर जाएं तो समझे वी आर गोइंग फॉर पिलग्रिमेज। डोंट एक्सपेक्ट ऑनर और द प्रेजेस। अरे आप ऐसे और आप ऐसे और आप ऐसे, आप ऐसे। अगर को कहे भी ना, बोला भैया बस ज़्यादा मत चढ़ाओ झाड़ पे, नीचे गिरूंगा हड्डियाँ मेरी टूटेंगी, आपकी नहीं टूटेंगी, तो ज़्यादा बड़ाई मत करो भाई। तो अपेक्षा, आज हम इस श्लोक से क्या कहना चाह रहे हैं कि कभी भी जिंदगी में जब आपने अपेक्षा की, ये जो मृत्यु संसार है, ये ड्वालिटी इसमें द्वंद्व है। जो आप इच्छा करेंगे उसके विपरीत होता है, तकरीबन हमेशा विपरीत होता है। जो आप सोच रहे वो नहीं होता, उसके विपरीत होता है। और जब चीज़ें विपरीत होती हैं तो हमारे जो अहंकार को ठेस पहुंचती है और हमें गुस्सा आता है। इसी तरह सोचते हुए परीक्षित महाराज को क्रोध आ गया कि न मुझे बैठने के लिए कहा, न मुझे कोई आसन दिया, न कोई मधुर वचन बोले, और न स्वागत किया। अब उनको क्या मालूम कि भगवान के चक्कर में फंस गए। और भगवान के चक्कर में कौन? शिव जी भगवान के चक्कर में फंसे, देव ऋषि नारद भगवान के चक्कर में फंसे, ब्रह्मा जी भगवान के चक्कर में फंसे, अर्जुन जैसे अपने चक्कर में फंसे। अब देखिए, अगर आपको ध्यान हो, जब द्वैत क्रीड़ा हो रही थी और जब युधिष्ठिर महाराज ने सब कुछ खो दिया, अपनी पति तक खो दी, उनको गुस्सा नहीं आया, वो शांत रहे। तितिक्षः कारुणकाः सूर्दा सर्वदेहे नाम अजात शत्रु शांतवः साधवः साधभूषणम। उनको बिल्कुल कोई वो नहीं था, पछतावा नहीं था। उनको मालूम था ये भैया कराने वाले वही हैं, क्या कर सकते हैं। यही विधि रागे राम सही विधि रहेंगे, बार बार कहते हैं। उनको गुस्सा नहीं आया। देखो भीम को गुस्सा आया, और क्या क्या उसने गुस्से में उसका जो है प्रतिकार कर दिया। इसलिए जब हम क्रोध हो जाते हैं किसी वजह से, तो सबसे पहले ध्यान रखें हम कुछ ना बोलें। जैसे आप किसी के घर गए, कोई अपमान हो भी गया तो बिल्कुल ना बोलें। क्रोध में जब हम बोलेंगे तो हम दुर्वचन बोलेंगे, सुवचन नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे अहंकार को जब ठेस पहुंचती है तो दिल में भी दर्द होता है? और कहते हैं दिल टूटता है, लेकिन दिल कोई पत्थर थोड़ी है जो टूट जाता है। तो दिल कैसे टूटता है? साइंटिफिकली देखें, ये तो लंब है, ये कैसे टूटेगा? और अगर टूट गया तो आदमी मर जाएगा। तो कहते हैं दिल टूटता है। दिल टूटता नहीं है, अहंकार को ठेस पहुंचती। और देखो वो जो कितने करीब 200 ग्राम 300 ग्राम दिल है, इसमें समुद्र जैसी चीजें हम भर सकते हैं। हमारा जो मन मस्तिष्क है, इसमें जो है हजारों चीजें ऐसे ऐसे सेल हैं कि बहुत सारे भर सकते हैं। तो ये मान और अपमान हमारे साथ है, हमको इसके आभास है, हम सब जानते हैं। और कभी कभी छोटी छोटी बातों पे हमारे अहंकार को ठेस पहुंचती है। राजऋषि परीक्षित जैसे को ठेस पहुंची। प्रपात उदाहरण दे रहे हैं, जरासंध का शत्रु है,
लेकिन उनका भी अभिवादन किया, उनकी भी सेवा की। शत्रु हो तो क्या हुआ, अतिथि है। जब महाभारत युद्ध होता था तो जैसे सूर्य अस्त हुआ उस बाद सब इकट्ठे होकर के एक दूसरे का हाल पूछते थे, एक दूसरे के घावों पे दवाई लगाते थे, कुशल क्षेम पूछते थे, तब कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन जैसे सूर्य उदय हुआ, शंख बजा, फिर अपने अपने कर्तव्य पे जो उनका क्षत्रिय धर्म था उसमें रहकर वो फिर लड़ाई करते थे। तो ये शत्रु और मित्र हमारे सारे मन की धारणाएं हैं। अब अपन हमारी मन की धारणा कैसे हो सकता है? जो हमारे सेंसेस की तृप्ति करे हमारा दोस्त, जो हमारे सेंसेस की सेटिस्फैक्शन में बने रुकावट बने वो हमारा दुश्मन। यही तो है दोस्त और दुश्मन। लेकिन अगर मन को यूज ही ना करें तो कहां दोस्त और कहां दुश्मन है? मैं इंद्र तृप्ति में अगर आपने बाधा डाली तो आप खराब आदमी हैं। लेकिन अगर आपने मेरे इंद्रियों को तृप्त करने के लिए चीजें दी तो अरे आप तो बड़े अच्छा आदमी भाई, बहुत सुंदर आदमी आप, आपके जैसा कोई नहीं है, तुम सा कोई नहीं। देखो ये कहानी है। तो हमें ये भागवत हमसे पढ़ना है ना, समझना है ना। अपमान होने पर क्रोध नहीं करना है, उसको समझना है। हो सकता है इस परिवार की ऐसी परिस्थिति हो, ऐसी धारणा हो, ऐसे संबंध बन गए हो कि वो हमारी आवभगत नहीं कर सकता। आपने देखा होगा इंडिया में शादियों में जो है बहुत झगड़ा हो जाता है, बहुत मार पिटाई हो जाती है शादियों में। क्योंकि जो बारात पक्ष के लोग हैं वो घराती को समझते हैं कि हमारा ऐसा करेगा, हमारा ऐसा जो है सत्कार करेगा, और सत्कार न हुआ तो वहीं गेट पे ही झगड़ा। शादी के पवित्र बंधन से पहले झगड़ा, वही मान अपमान, हर जगह यही तो है। आपने देखा दुर्वासा मुनि जैसे मुनि, जरा से चूक हुई तो गुस्सा कि मेरा अपमान हो गया। अरे भाई अपमान नहीं हुआ, नहीं, अब मेरा अपमान हुआ। अब कैसे अपमान हुआ कि मैंने समझ लिया। भाई आपने समझा, हमने तो नहीं किया। इसलिए जब कभी आप समझें भी कि मेरा अपमान हो रहा है, शांत बैठे और तब भगवान का ध्यान दें कि भगवान या के मेरे लिए संकेत है क्या जो मेरी बुराइयां हैं ये लोग मुझे बता रहे हैं मेरे अंदर क्या बुराइयां हैं। तो इस प्रकार मन को शांत रखना है, लेकिन उपेक्षा और अपेक्षा हर समय हमारे साथ चलती रहेंगी। हर समय हम घर से निकलते हैं, हमें मालूम है कि हम टाइम से बस पहुंचेंगे, अपेक्षा है। लेकिन अगर रास्ते में जो है ट्रैफिक हो गया, कुछ ट्रैफिक जाम हो गया, तो हम अपने आप में गाली देने लगते हैं। किसको? लोगों को। जैसे कि हमारे अलावा बाकी गाड़ी चलाने किसी को आती नहीं। क्रोध, तो हम क्रोध से भरे पड़े हैं। हमारी नाक के टिप के ऊपर है क्रोध, झलक जाता है, झटक जाता है, झटक जाता है, झटक जाता है। तो अगर कभी अपमान हो भी जाए, आपको लग भी जाए, फिर भी शांत बने रहे, अपने वचनों को न खोलिए। क्योंकि जैसा आप बोलेंगे पता चल जाएगा आप क्या बोल रहे हैं। दिल की जो अहंकार, आपको मालूम है कि इस श्रीमद् भागवतम ज अक्षर से शुरू होती है, जन्माद्यस्य ज, और गोपी गीतम भी ज से होता है, जयति देधिकम। ये जो दो ज अक्षर हैं इनको संस्कृत में अच्छा नहीं माना जाता है। इनको बोलते ये ज्वलनशील हैं ज, लेकिन यहां कहता है जन्माद्यस्य और जयति देधिकम। तो किसी ने कहा कि वेद व्यास जी ये तो गलत है, ज से तो शुरू नहीं होता। अरे उसने कहा ये मेरे दिल की जलन है, जलन ही तो बाहर आएगी। जन्माद्यस्य, और क्या होगा? जन्माद्यस्य सर्व पाप प्रणाशनम दुख प्रणामो तम नमा हरिपरम। जन्माद्यस्य तम नमामि हरिपरम। ये जन्म हरिपरम के लिए है। अगर आप पहला शब्द लें और श्रीमद् भागवतम आखिरी शब्द लें तो जन्म से लेकर परम तक है कि ये जन्म परम के लिए बना है, परम की भक्ति के लिए बना है। इस बीच में न कोई मान है, न अपमान है, न सुख है, न दुख है।
न हानि है, न लाभ है, न शोक है, न शांति है, कुछ भी नहीं है, सब भगवान के परायण है। तो लेकिन अब भगवान की इच्छा है। कभी कभी आपने अपने आप में सोचा होगा कि कभी आपके मुंह से ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं, आप बोलते हैं अरे ये कैसे हो गया, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो तब पता चले कि हमारे जो वो क्या बोलते हैं अहम दैव नेत्रेण, हम जो भी कार्य कर रहे हैं दैव के नेत्रों में, दैव के आदि में काम कर रहे हैं। बहुवो तपसा पूता मदभावम आगता है। लेकिन अगर ऐसी बनी रहे, ध्यान बना रहे, कृष्ण भक्ति बनी रहे, तो भगवान कहते हैं बहुत लोग मेरे धाम आ चुके हैं, डोंट वरी अबाउट इट। तो आसन, बैठने का स्थान, जल तथा मधुर वचनों के द्वारा किसी प्रकार से स्वागत न किए जाने पर, देखिए राजाधिराज राज ऋषि परीक्षित को भी बुरा लगा, तो हमको तो लगना ही है बुरा। तो दो चीजें होते हुए, ये तो आप किसी घर मत जाइए तो अपमान ही नहीं होगा, और जाएं तो अपमान का घूंट पी करके जाएं, क्योंकि वहां जिस घर में आप जाएंगे हर चीज आपके अनुकूल नहीं मिली, बिल्कुल नहीं मिली, आपको कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा। और ये संसार में, ये भौतिक संसार है, जहां कहीं हम जाएं, चाहे ऑफिस हो, चाहे मार्केट हो, या कहीं हो, बहुत परेशानी। देखिए आपके पास बहुत शानदार कार हो और आप गए सब्जी मंडी और आपको पार्किंग न मिली, कितना गुस्सा आता है। ऐसे सोचते हैं मेरी इतनी बड़ी कार है, कम से कम मेरे लिए एक कार पार्क तो रिजर्व होना चाहिए भाई। तो हर चीज हमारे अनुकूल नहीं होगी, कभी नहीं होगी, लेकिन जब ये प्रतिकूल होती है तो तब धैर्य रखना है। तो श्रीमद् भागवतम हमें कहती है धैर्य है पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। ये अभिमान की बात यहां हो रही है। दया धर्म का मूल है। जब हम दया करेंगे, जीव दया हम करेंगे, तो वो एक धर्म है, और जब अभिमान करेंगे वो पाप का सृजन करता है। तो आइए आज से हम अपने अभिमान से बचें। इसमें बहुत सारी और चीज़ें कही जा सकती हैं, लेकिन देखते हैं आगे हमें और क्या क्या सुनने को, समझने को, पढ़ने को मिलता है। तो मैं अपनी वाणी यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो अगर आपको स्लाइड देखने की इच्छा हो तो हम तैयार हैं, और आप स्लाइड नहीं देखना चाहते हैं तो आप इस पे टिप्पणी और विचार विमर्श कर सकते हैं। तो वो स्लाइड दिखाइए, और some slide like chanting, and these are the which are we can utilize for our new devotees. If you can share. Or Mridula Mataji was also asking that we have some new groups. Yeah. Chanting slides like that, some basic things. से Very good. तो आज मैंने आप लोगों के लिए जो चुना है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट चुना है। वो शब्द है अनर्थ। अनर्थ क्या है? तो अनर्थ से बात करते हैं। देखिए आपने मुझे स्क्रीन शेयर दिया कि नहीं दिया? अनर्थ। हाँ, आपने मुझे दिया है। तो लीजिए, आपको शुरू करते हैं हम। अनर्थ क्या है? टू 1 minute। प्रभु जी, आप लोग देख सकते हैं? Yes. तो देखिए हमारे जीवन में अनर्थ क्या है। हम लोग प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम लोग बहुत सारे अपने जीवन में अनर्थ कर रहे हैं। तो अनर्थों को 4 भागों में बांटा गया है। हृदय दौर्बल्यम, अपराध, असत तृष्णा एंड तत्व विभ्रम।
सो हम सब के सब इन अनर्थों में लिप्त हैं, जाने अनजाने। अब देखते हैं हृदय दौर्बल्यम क्या है। आप देख पा रहे हैं? कैन यू सी? Yes. तो हृदय दौर्बल्यम में है डिसीट, फॉल्ट फाइंडिंग, envy, hatred and attachment। तो हम क्या है, हमारा जो हृदय दौर्बल्यम है, हमारे हृदय पे काबू नहीं है, मन पे काबू नहीं है, तो इस Prabhu, the screen is still in the same place, anarthas. इज इट? Yes. लेकिन इधर तो Prabhu, we are able to see. हैं? We can see. না মানে হৃদয় দুর্লভ ওই যে পরে যা বলছে সেগুলো দেখা যাচ্ছে না তো। আমরা তো দেখতে পাচ্ছি প্রভু। ও Ajay, we cannot see Prabhu. Can we see now the deceit, fault finding? yeah we can Yeah. see it now. Okay, I think it was like this. Prabhu, maybe. Yes, Prabhu. So hridaya daurvalyam, it has 5 factor: deceit, fault finding, envy and hatred and attachment. We all have these with us. What is the deceit? Every time dealing for only profit or gain. किसी के साथ कभी भी अगर हमारा व्यवहार है तो हमें क्या मिलेगा, हमको क्या प्रॉफिट है, हमको क्या गेन है। सेकेंड क्या डिसीट है? नॉट रिवीलिंग अवर इंटेंशन टू फेलो बींग्स। हर चीज छुपा छुपा के काम करना, अपना मतलब नहीं बताना। देन ट्राइंग टू चीट एज इफ no one is watching us. So we cheat. Different ways of cheating, not only that you cheat with money, different ways of cheating. And covering our real intention identity. हम कौन हैं, हमारा मकसद क्या है, हम नहीं बताते हैं। जो हमारे नज़दीकी हैं, जो हमारे पास में है, जिनसे हमारा हर रोज़ सरोकार पड़ता है। डिसीट। Now, fault finding. Why do we find the fault? To show our superiority. Just fault finding to show our superiority, or to pose as if we are the knower of everything. Pose. I know. Second fault finding is to expect things to satisfy our whims and fancies. कोई भी काम अगर हमारे अनुकूल नहीं हो रहा, हम बोले अरे ये तुम क्या कर रहे हो, ये ऐसा क्या है, ऐसा थोड़ी होता। क्यों? कि आई एम माई सेंसेस आर नॉट बीइंग सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज और थिंग्स एज ऑफर्ड टू अस। देन वी हैव envy. Our envy is why others have better opportunity than me. Very common. Or to gain things without hard labor. हम चाहते हैं हम भी बिल गेट की तरह बन जाए, या और क्या क्या नाम नहीं मुझे याद है, स्टीव जॉब की तरह बन जाए, बस विदाउट डूइंग एनीथिंग। एनवी, यार ये कैसे, यार मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं। तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं तो दूसरों को ब्लेम करो। एनवी। टू फील डिजेक्टेड ओवर अदर्स अकम्पलिशमेंट, या जिसने हमारे साथी हैं, जो हमारे साथ रहे, अगर उन्होंने हमसे ज़्यादा कुछ नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी हो गई तो वी बिकम envious. And this envy is inborn quality. It is already there so long we are not dedicated to the service of Krishna. Hatred. When you can't achieve what others have, then we have hatred. Or when someone is more famous than us, hatred. ये हमारे सामने था यार, he is in front of me only. My God, how he has done it?
I think he has some special thing. I know him. And the last attachment is attachment to things other than Krishna. So, in Hridaya Daurvalyam, we all have this possession with us. Sometimes we use, sometimes maybe at the back burner, but they are there. Now let's go for aparadha. So there are 4 kinds of aparadha: Nam aparad, Vaishnav aparad, Jeev aparad, and Dham aparad. Can you see now? Is it okay? Yes. Okay, good. Now, what are the Nam aparad? You all know about it. Just to blaspheme devotees who have dedicated their life for propagating the holy name of the Lord. Number 2, considering other demigods equal to Krishna. Number 3, disobeying the orders of Guru or spiritual master. Number 4, criticizing Vedic literatures. 5, giving different interpretation of the holy name. 7, I don't know, considering Mahamantra as imagination. Then committing sinful act on the strength of the holy name. कुछ भी काम कर लो, भगवान का नाम जप करेंगे, सारे पाप खत्म हो जाएंगे. तो पाप करते रहो, नाम जपते रहो. तो ऐसा नहीं होगा. बहुजन्म कर यदि श्रवण कीर्तना तबो तना पाया कृष्ण पदे प्रेम धन. Offensing chanting will not bring the Krishna prema to us. Then considering Hare Krishna Mahamantra as ritualistic activities. And the 9th is to preach non-believers. And last, continuing materialistic life even without understanding all above. Then we have got Vaishnava aparad. It is killing, insulting, or physically harming a devotee, criticizing or blaspheming a devotee, either in front or at his back, envious towards a devotee. Sometimes you don't say, you don't criticize openly, but you are very envious of the devotee. Not offering respect to devotee. Just when some of the devotees they come and you don't like them, you turn your face. That's also an offense. Vaishnava aparad. Becoming angry towards a devotee, sometime for reason, sometime for no reason. And last one, not becoming happy on seeing a devotee. Well, are ye bhi aa gaya? My God. Then there are Jeev aparadha. Jeev aparadha is killing animals, not protecting cows when in danger. When cow is in danger, it's our duty, we should save the cow. Third, taking undue advantage from lower section of society without properly remunerating them. Something free. ये कर लो, वो कर लो. पैसा नहीं है, बाद में देंगे, करेंगे, वो करेंगे. No. You must give them much more. If somebody has entered the service, generally etiquette is there. You must give him more than he's expecting. Then he'll become happy. And the last is not enlightening them about bhakti. To our associate, to our friends, he says, I don't know, he can never become a bhakta. No, we have to try. Otherwise, it's Jeev aparad. That he had an opportunity to be with you and you could not induce it, infuse the bhakti in him. Then there's Dham aparad. In Dhama, when you go to Dhama in pilgrimage, then what is Dhama aparada? Indulging in worldly affair. Doing the same thing which you are doing outside the Dhama. Or criticizing Dhamvasi for various reasons. If they are not up to your expectation, you think, oh my God, they are nonsense. We cannot do that. The last one is thinking it to be a picnic spot. So these are the Dhama aparadas. Then Asatu Trishna. In Asat Trishna, there is a material desire, looking for heavenly comfort, mystic power, and liberation. So in material desire,
but a desire to enjoy the life by any means. Rinam kritva ghritam piva. Beg, borrowed, steal, enjoy the life. The life is meant to enjoy. That's what they say. Is called asatu trishna. Then comes looking for heavenly comfort, desiring the company of apsaras, and unlimited, unrestricted gratification of the senses. People want to go, everybody looking for the heaven. We'll go to heaven, we'll do this. So it's known as asa tattva, looking for heavenly comfort. There are many comforts. I'll just give this one. Now, this mystic power, to gain mystic power, anima, mahima, lagima, prapti, prakamya, ishita, vasita, kama, vashita. What is anima? To become smaller. Mahima, to become big. Lagima, to become lighter. Prapti, to satisfy the desire. Prakamya, to bring things from any planet. You can bring it with this mystic power. But only within the 14-planet system, not outside the 14-planet system. Isita, to overcome the influence of Maya. But again, for a short period of time, I'm within the 14-planet system. Basita, to overpower others. Bashikarana mantra. The people will become in our vasa and they do what we want them to do. They act what we want them to act. Kama vasita, to win over the lust. This is also the power of mystic power. That's what mystic power, asata trishna. Then other one is the liberation. What is liberation? Reaching to heaven, merging into Brahmajyoti, getting free from the material miseries, or surpassing the lower status of life. Liberation also, when we say the child is, let us say he passed 10th and 12th, oh my God, this will be liberated. From the lower species, the lower modes, lower status is going to higher, that's your liberation. So that is asata trishna. Then tattva vibhrama. It is swatattva, paratattva, sadhya, sadhana. Sattvatva, self-identification. One is me and mine. Tattva vibhrama. Aham Ishwar, Aham Bhogi, Aham Balwan, Aham Sukhi. It's everything me. I. There is one poem is there. मैना ने मैना कही मोल लग्यो 10-20 बकरी ने मैं कही दे कटायो शीश. मैना, the koel, black in color, but when he speaks, so sweet that people can buy for money and keep it at home to listen to the music. और बकरी ने मैं कही है, बकरी मैं, और they have been slaughtered. So मैं और तू, जो मेरा करेगा सो मरेगा, जो तेरा करेगा वो तरेगा. So tattva is self-identification. Paratattva means not knowing who the Lord is, not interested. So what? Krishna is supreme, so what? He has the law of openness, so what? He supplies everything, so what? Everything, so what? So this is called paratattva. No information about paratattva. Sadhya. What is the ultimate goal? At the moment, everyone's goal is to make money. That's it. Everybody's goal to make money. And when we are young, yesterday I was saying, when we are young, we spend
time and energy to make money, and when our health deteriorates, then use that money to regain our health. So the first place, why we have done that? So sadhya and sadhana, not to use opulence for Krishna. Maybe we have time, we have got, what do you call it, opportunity, we have time, we have resources, everything we have got, but using only for self, not using for Krishna, so it's called tattva vivarma. So these all are anarthas that we carry, not really knowing that we are carrying the burden on our head, and the load is so much that sometimes we are hard pressed and give up the life. So, as far as possible, how to avoid all these anarthas? One by one will be very, very difficult to remember. So, simply surrender to Krishna 24 hours a day, and you will be absolved of all these anarthas. So, this is the end of the slides of anarthas. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu, Hare Bol. Very nice. Anartha. So we need to name Anartha and equity, and the solution is simply surrender to Krishna. Lot of Anarthas, and many of them, not many, almost all of these Anarthas I can see in me. Everybody has it. But I We all carry these anarthas because we have material body, we have material mind, we have material intelligence. So we all have this. Nobody is exception. Saving the Vaishnavas. We have the hope that Yes. chanting Lord's holy name and Prabhupada mercy, Kumara's mercy. Sucharu Prabhu, Harivan. খুব ভালো, ভেরি নাইস, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আজকে একটু শুনি অন্যদের থেকে, কি বলে ভেঙ্কটেশ্বর প্রভু, জীবন ভট্টল প্রভু, এরা বলুক। ভেরি নাইস, থ্যাংক ইউ। Hare Venkateshwar Prabhu. Vijayamata Prabhu, Sarvabandha Mataji, anything to recite today? Yes. That's what. हाँ जी प्रभु जी धन्यवाद। Okay. क्योंकि डॉक्टर साहब ने बोल रखा कि मैंने ना पैर जो है ऊपर रखना है, वो पिलो के ऊपर, पढ़ो। तब फिर मैं यहाँ से ना पैर रखने के लिए चली, ऐसे में मैं नहीं रख सकती। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कौन सा? हरे कृष्णा। ना इधर ये इधर दो कौन सा एक ही दिया एक है 29 28 जुबियाल दिखाई हरे कृष्णा। जब महाराजा परीक्षित को नहीं आसन मिला, नहीं शब्दों से उनका सत्कार हुआ और नहीं मांगे गए पानी को पिलाया गया, तो उन्हें लगा कि राजा का अपमान हो रहा है और वह यह धारणा समझकर अति क्रुद्ध हुए। धर्म के अनुसार दुश्मन का भी अतिथि सत्कार होता है। तो राजा ने सोचा कि समीक मुनि धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं और दिखावे के लिए शांत मुद्रा में बैठे हैं ताकि मेरी सेवा न करनी पड़े। प्रभुपाद जी जरासंध का उदाहरण दे रहे हैं कि किस प्रकार उसने अपने शत्रु